Sir, last question now. Question number 9, beta. Okay. Question number 9, I'm discussing this. Ninth question is, let R be the relation on Z defined by R equal to given जो set है that is your set of integers, and definition of relation is ordered pair AB such that A belongs to Z, B belongs to Z, A minus B is an even integer. A minus B is an even integer. This is my relation, beta. And Sir, in my book it is written only an integer. only an integer. Yes. क्या? तो चलो मैं इंटीजर से बता देता हूँ बेटा. हो सकता है, चलो ओनली इंटीजर, राइट. चलो से भी लेते हैं. आपको ये बताना है बेटा कि ए अगर ये रिलेशन है जिसमें ए और माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए, देन व्हाट विल बी द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. सी हियर वी हैव जेड and here also we have z, right? This set is z, this also set z. So if we are taking, suppose करो a और b ले रहे हो आप, अब आपके पास a b relation है and this is a minus b is an integer. ये a minus b को integer बोल रहे हैं. So suppose I have taken a as 1 and b as 2. So if we solve this, a b 1 minus 2 is equal to minus 1, right? This is my answer is minus 1, which is the element of a set of integers. Suppose I have taken 2, 1 here. So 2 minus 1, answer is 1. Again, it is an integer. If we take both positive number, this is giving an integer answer, right? If we take odd numbers, 5 minus 3, 5 minus 3 is equal to this. This is again an integer. So what is this concluding about domain and range? डोमेन ऑफ आर. डोमेन क्या होता है बेटा? ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन पूरा डोमेन होता है, राइट? दिस सेट इज नोन एज डोमेन. तो डोमेन ऑफ रिलेशन इज व्हाट? जो भी पॉइंट हम इसके लेंगे उसी से यूज कर रहे हैं बेटा. तो डोमेन कितने हो गए बेटा? बोलो. 1 2 2 ऑल इंटीजर्स बेटा. ये तो मैंने एग्जांपल लिया बेटा. This the example I have taken, right? So I can take all the integers. Answer will be in integer according to this rule. A minus b will give you integers only. तो हमारी ये condition verify हो रही है कि will take two integers here and if we subtract them, answer is an integer. तो ये relation है. इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं इंटीजर लूंगा तो आंसर इंटीजर में आता है, सम और एडिशन दोनों, सॉरी डिफरेंस एंड एडिशन दोनों में आंसर आपका इंटीजर ही आता है. अब ये हो गया डोमेन, क्योंकि डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन. तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास सारे ऑप्शन है ये सेट. अब रेंज क्या होता है? जो जो कनेक्टेड होते हैं इससे, जो जो कनेक्टेड होते हैं उनको रेंज बोलते हैं. सो अब मुझे बताओ कौन कौन से कनेक्ट होंगे. रेंज ऑफ आर Z. जेड है बेटा. तो अगर इसी केस में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कोडोमेन, दैट इज ऑल बिकॉज दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज कोडोमेन, राइट? एंड द एलिमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू द डोमेन, दोज आर नोन एज रेंज. So in this case, range of R is Z and codomain of R is Z. So basically in this case,
रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ आर इक्वल टू कोडोमेन, ये है बेटा। और नेक्स्ट ईयर आप इसी का मतलब समझोगे आप, अभी आपका इसका कोई मतलब नहीं है बस इस साल। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन का एक मतलब होता है, इन नेक्स्ट ईयर आई टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन अ रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ रिलेशन, because this complete chapter relation and function as it is there in this class 12th also, and the same concept we have to use there. So remember these things which I am teaching in this topic beta, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको दिमाग में रखना। Any other question beta of 2.2 exercise? No, Any sir. other? All done? Right. Okay. Now today I'm starting function beta. The topic, next topic is function. रिलेशन से कैसे इसका ये है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप, कोई यूनिक चीज होगी रिलेशन में से, वो का फंक्शन है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन, राइट। अब फंक्शन होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बेटा, function, it is a relation। अब यहाँ पे फंक्शन है बिकॉज, तो मैं इसको f से इंडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज फंक्शन है। a relation f from a to b is said to be function, is said to be function if every element, if every element of set A has one and only one and only one. This word beta, one and only one, and this is known as unique image. One only one or unique image in set B. This is known as function beta, indicated by function from A to B, and fx equal to any kind, fx equal to y, we can say in general, fx equal to y in general। ये मैंने एक पर्टिकुलर ले लिया, राइट, तो ये जनरल में। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा? फर्स्ट थिंग, वन एंड ओनली वन का क्या मतलब है? यूनिक इज व्हाट, ठीक है। सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस पॉइंट हैज दिस इमेज, this point has this image, this point has this image, this point has this image। मेरे पास सपोज करो मेरे पास यहाँ पे चार एलिमेंट थे, 1 2 3 4, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए बेटा, ध्यान रखना, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है एवरी एलिमेंट। कहाँ गया भाई एवरी, दिस वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, सेट ए, सेट बी, यहाँ पे मैंने एक दो एलिमेंट ऐसे ही, 1, this is related with this one, this one this, this one this, this one this, और एक और ले लो, और ये कर दो। Again this is number 2, and now A, B, third one, this is in
its point image is this one, this point image is this one, this point image is this one, this point is image is this one, this point is image is this one. Number 4. I'm making 4 diagram here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. This point has image this one. This point has image this one. This is there. This is there. This is there. Right? This first figure is a figure of function, beta. This is the example of a function. This is also an example of a function. This is also an example of a function. But this fourth one is not an example of a function. Because here one point has 2 image, beta. अब देखो इस पॉइंट की 2 इमेज. कहने का मतलब है ये, इसका मतलब एक तरीके से होता है कि मैं इस समय आपके सामने भी हूं और कहीं और भी हूं. ऐसा पॉसिबल है बेटा? In reality, it is possible that I am in front of you also and somewhere also. ठीक है, अभी मैं इस समय आपके सामने हूं, तो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं कोई आप किसी स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा हूँ लाइव. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सेम टाइम पे मैं एक जगह पे ही हो सकता हूँ. तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब आपको क्या है बेटा, यहाँ पे मैं एक टाइम पे कई बच्चों को पढ़ा सकता हूँ. ठीक है ना, या बहुत सारे, जैसे आप सपोज को और क्या एग्जांपल दूं लाइफ का, देखो मल्टीटास्किंग कर सकते हो. जैसे आप, चलो मैं फंक्शन से लेता हूँ. फंक्शन बेसिकली क्या है बेटा, देखो सपोज आई हैव टेकन दिस f(x) is equal to 2x. In relation I've already told you this x is known as what? Anyone? This x is known as what? I've given a name or a name of this x. Anyone? And what is this known as? Subdomain. No other thing. This x is known as beta pre-image, right? And this 2x is known as what? Image. Image, right? So x is pre-image and 2x is the image, beta. So function is basically what, beta? This is a machine. इस मशीन में हमने कुछ इनपुट यानी रॉ मटेरियल डाला, तो जो शेप बन के आई, सपोज करो मैंने रॉ मटेरियल डाला और मशीन में से ये पेन बन के आया. तो फंक्शन इज ऑलवेज अ मशीन. जहां पे हमने कोई रॉ मटेरियल डाला, दिस इज नोन एज प्री इमेज, राइट? जो बन के आई इमेज, दैट इज जो भी आपकी शेप बन के आई, दैट इज नोन एज इमेज. ठीक है, तो आपने इनपुट डाला, तो जो भी इनपुट डालते हो आप, दैट इज डोमेन. That is domain, right? और ये जो होता है, that this is known as range. जो भी आपका आउटपुट निकल के आता है, that is known as range of a function. ठीक है, बोलो बेटा. देखो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, their production commodities are पेन एंड देयर रिफिल. सो आपके पास ये फंक्शन, ये आपके पास है, ठीक है, और ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, राइट? जो भी उसके अंदर प्रोडक्शन होती है उनको बोलते हैं कोडोमेन. और जो रॉ मटेरियल मेरे पास यहाँ पे है, उनसे जो भी चीजें बन के निकल रही हैं, इधर कुछ और भी हो सकता है बेटा, इधर कुछ भी, लेकिन रॉ मटेरियल हम वही यूज कर रहे हैं. तो इस पार्ट को, जो ये इमेजेस आ रही हैं, दिस इज नोन एज रेंज एंड द होल सेट बी इज नोन एज डोमेन. रेंज एंड कोडोमेन. सो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन बेटा, एंड इट मे इक्वल टू द कोडोमेन आल्सो. It means the complete set B can be
आर रेंज ऑल्सो, यानी पूरी का पूरा सेट बी रेंज भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज नोन एज फंक्शन, एंड वेयर दिस इज एक्स इज नोन एज प्री इमेज। आपके पास कई बार ऐसे भी आता है बेटा, दे राइट लाइक दिस वे, ए इज इक्वल टू बी और एफ एक्स इक्वल टू वाई और एफ एक्स equal to y. So this, what is this x known as? So your answer should be pre-image. So what is this y known as? Your answer should be image. Same here beta, this a is known as pre-image and this b is known as image. ये ध्यान रखना बेटा, and this is pre-image और image under the rule of this function. जो भी आपका फंक्शन है, सपोज करो यहाँ पे फंक्शन 2x है, ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन लेता हूं यहाँ पे fx equal to 2x and I'm telling this thing here, this f is a function from natural number to natural number, natural number to natural number. So you know that this set, this is n, and this set, this is also n beta, and we have here 1 2 3 4 5 6 7 8, suppose, and dot dot dot. Similarly here 1 2 3 4 5 6 7 8 dot dot dot. But under this process beta, if we put x equal to 1, my answer is 2. So if we put my input is 1 and output is 2. If we put 2, answer is 4. For 3 it is 6. For 4 it is 8 and so on. So जो ये 2 4 6 8 है, these are the part or element of range. These are range, and this whole, this complete set domain, and this complete set is codomain. बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वन की प्री इमेज नहीं है, यहाँ पे इस वन की प्री इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ के सब एलिमेंट में इस मशीन में डाल सकता हूँ और उससे कोई ना कोई इमेजेस आएगी। तो अगर मैं 8 डालूंगा तो 16 आएगी, 20 डालूंगा 40 आएगी, बट ऑड नंबर्स, यहाँ पे जो ऑड नंबर्स हैं वो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस नोन एज, दिस विल लर्न इन दिस नेक्स्ट ईयर बेटा, मतलब आप 12th में, क्योंकि ये चैप्टर टोटली कनेक्टेड है 11th एंड 12th। ठीक है, 11th अगर समझ में आएगी आपको तो 12th में चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बेसिकली ये फंक्शन इज व्हाट, कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी वन एंड ओनली वन इमेज विल बी देयर इन दिस सेट बी, देन ओनली दिस इज नोन एज फंक्शन, अदरवाइज नॉट। अब अगर आप ये कहो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इस पॉइंट की इमेज ये भी है और ये भी है, तो एक पॉइंट की दो इमेज, कोई ऐसा एग्जांपल, अगर मैं यही कहूं कि अभी मैंने 1 पुट किया तो आंसर इज 2, बट अगर मैं 1 आवर के बाद इसमें 1 डालूंगा दोबारा से तो आंसर विल बी 4। अभी मैंने रॉ मटेरियल पेन का डाला तो अभी तो पेन बन के आया, लेकिन फिर से ही रॉ मटेरियल मैं पेन का ही डाल रहा हूँ, बट जो शेप बन के आई वो पेंसिल बन के आई। इज इट पॉसिबल बेटा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैथमेटिकली समझना बेटा, इफ लेस देन सिंबल इज, डायग्राम में आपको लेस देन सिंबल इज विजिबल, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट if this greater than symbol is visible, then this is a function. ये कैसे आ सकता है बेटा? देखो, if my function is fx equal to 2, अगर fx equal to 2 है, यहाँ x नहीं है, तो this is known as constant. We don't have any variable here. So right, so if we put 1, answer is 2. If we put 2, answer is 2. If we put 3, answer is 2. So it means what बेटा? अगर मैं 1 लिया तब भी आंसर 2 आ रहा है, 2 पुट करने पे भी 2 आ रहा है, 3 पुट करने पे भी 3 आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंटों की एक इमेज आ रही है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बेटा। और एग्जांपल लेता हूं, चलो कांस्टेंट का नहीं लेता, मैं आपका एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा।
my is यहाँ पे हमने ले लिया real number. Here also I'll write natural number. This is a function from real to natural number. या real ही ले लेते हैं, ठीक है? And function is fx equal to x square. So just tell me, if we put 1, answer will be what? बोलो बेटा, इस One. function में 1. 1. And if we put -1, what is the answer? 1. 1. 1. So it means these 2 points has same image, right? Similarly, if we put 2, answer is 4. If we put -2, answer is again 4. So it is giving 2 image. So 2 point has 1 image. So what is known as this? Which type of function is this? This we learn in the next year, beta, 12th class. ठीक है? So this is the function, beta. And domain of function. Domain of function. Domain of function. अब यहाँ समझना बेटा ध्यान से. आप पहले recall करो what was the definition of domain of relation, बेटा. बताएगा बेटा कोई? क्या बताया था बेटा? First elements of ordered Set pair. of all first elements of ordered pair, right? But now domain of function is what? Set of all points. Definition. इसको ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Set of all points for which given function is defined. For which given function is defined. तो अगर आप देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं 1 by 1. fx इक्वल टू सपोज मैंने लिखा x स्क्वायर. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन का मतलब होता है कि फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड. तो पहली चीज, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0. Any number divided by 0 is known as what, beta? Infinity. क्या बेटा? Infinity. Infinity, and infinity is basically not defined. Basically infinity word नहीं है बेटा, इसका नाम जो है वो not defined situation है. And not defined को हम इससे represent कर देते हैं, इस symbol का नाम infinity होता है. ठीक है? Not defined, ये सिंबल बेसिकली नॉट डिफाइंड है. ठीक है, चलो अब मैंने आपको बोला एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो किसी में डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल होगा तब तो हमें चेक करने की जरूरत है कि वो किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है. तो पहली चीज, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर. आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे रियल नंबर में से, वो आंसर आपको देगा ही देगा कुछ ना कुछ. बट जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पुट कर दिया, फंक्शन चेंज कर दिया, ये मशीन, तो इस मशीन की रेस्ट्रिक्शन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. आपको इस मशीन में 0 नहीं पुट करना बेटा. जैसे ही आपने 0 पुट किया, ये मशीन आपको कुछ भी आंसर नहीं देगी, हो सकता है मशीन खराब हो जाए. तो मुझे क्या ध्यान रखना है, इस मशीन की रेस्ट्रिक्शन है 0 नहीं पुट करना. तो जो रेस्ट्रिक्शन होती है उसको हटा दो. ऑल दी पॉइंट्स आर डोमेन. यानी इसका जब डोमेन की बात करेंगे तो आंसर विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. 0 को छोड़ के बाकी सब में कोई ना कोई डेफिनेट आंसर देगा ये. If we put -1, answer is -1. If we put -2, answer is -1/2. तो इसका आंसर क्या हो गया? 0. तो मुझे क्या देखना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तो ये किस जगह पे 0 हो रहा है, उस पॉइंट को हटा दो. किस पॉइंट के लिए 0 है, उस पॉइंट को हटा दो. देखो एक और एग्जांपल, fx इक्वल टू मैंने लिखा 4x अपॉन x - 3. ठीक है, अब इस मशीन में देखो ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कौन से नंबर्स हैं, राइट, जिनकी वजह से ये मशीन आपका कुछ भी आउटपुट नहीं देती है. 3. So its answer is domain of this function is all real number except 3. Except 3. चलो अब और देखते बेटा एक बार. fx, अब मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन
x square minus 3x minus 2. Now what is the domain of this? कुछ गलत है बेटा यहाँ पे, है ना? तो x square minus 3x plus 2 is equal to 0. ठीक है, अब आप इसके फैक्टर देखो, पहले इसके फैक्टर देखो बेटा, x minus 1 and x minus 2. So in these 2 points this denominator is 0. In these 2 points this denominator is 0. So अब आपका इसका जो डोमेन हुआ बेटा, डोमेन ऑफ दिस f is all real number except आपके पास हो गया 1, 2. So it means मुझे क्या देखना है, जब आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन हो तो आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर किस किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, उन पॉइंट में उन पॉइंट्स को collection of those points should be subtracted from the set of universal set of real numbers मतलब. Is this clear or not बेटा? Domain is clear बेटा? Domain की definition है बेटा, set of all points for which function is defined. चलो एक और लेते हैं, अभी मैंने ये लिया. अब आ जाते हैं, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कहीं ना कहीं, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पढ़ी है आपने. So if my function is fx equal to sin x, what is the domain of f? क्या साइन फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होता है बेटा, किसी पॉइंट पे किसी वैल्यू के लिए? इतना तो पढ़ाई है बेटा आपने. चलो आपने बेसिकली 0 to π/2, मैं इस फंक्शन को चलो ऐसे ही कर देता. दिस इज set A and set B. This set is from 0 to π/2. आपने 0 to π/2 तक की वैल्यू पढ़ी है ना, 0 से 90, सॉरी 90 बोलता हूँ क्योंकि आपने डिग्रीज में पढ़ा है. और इसकी वैल्यूज आती है 0, 1, हाफ, ये सब आती है, तो मैंने इसे -1 और 1 के बीच में रख दिया. ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा? द सेट ऑफ पॉइंट. Somebody want to say something, but sure. Domain function in this situation beta, sin x is defined for every number, every point it is defined, because according to trigonometric table sin x की कोई situation नहीं जहाँ पे not defined होता है. तो domain of this function is all real number. If it is cos x, it is real number, and for tan x कोई बताएगा भाई? all real number except 90 degree. Why beta? Why? Anyone? Because tan x, Because tan 90 is not defined. tan is not defined. तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, देखो अभी हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे ये बेसिकली, तब मैं आपको उसका डोमेन रेंज वहां पे क्लियर करूंगा. अभी मैं रैशनल एक्सप्रेशन पे काम करूंगा. 0, this is known as 90, this is known as 180, and this is known as 270, and this is 360. ये रोटेशन है बेटा 90 डिग्री. 90 ऐड करते चले जाओ तो आपका वो 360 का एक रोटेशन हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है. राइट, तो आप ध्यान रखना, tan जो होता है, tan थीटा, वो इस y एक्सिस पे नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है, tan थीटा जो है वो आपका इस y एक्सिस पे नॉट डिफाइंड होता है. इट मींस 90, 270. अगला रोटेशन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा बताओ? आफ्टर 360 व्हाट विल बी हियर? रोटेशन करो बेटा. दिस इज आफ्टर दिस 360 कंटिन्यूएशन में. चलो आगे आप 90 ऐड कर लो, 450. देखो 90 में 98 क्या 180, 180 में 90 ऐड किया 270. This point is known as, this place is known as 270, then this is known as 360. So we start from 0. The first is 0, then add 90. The second, so these are known as 4 sections of 2 dimension, 2-dimensional space. 2-dimensional space. ये तो लॉजिकल IQ related question है बेटा. 2-dimensional geometry divided into how many parts, how many sections?
So this is your 4 part beta. Oh. ठीक है, 4 section, right? ऐसे same आप this year you will learn the 3-dimensional geometry. Divide the space into how many sections, that you will learn this year. Anyone who knows this thing better? The 3-dimensional geometry, 3-dimensional space, when divided, how many sections in divided? How many divisions we have in a 3-dimensional space? चलो कोई नहीं, 9. हम पढ़ेंगे. 9. Very good. But this is wrong answer. ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे बेटा, मैं बताऊंगा. 12 is also wrong बेटा. Anyone else? 10 finite. 10. 6. 6. 6. This is also wrong. This is also wrong. 10 infinite. Infinite. क्या नाम है बेटा आपका? Savani. वानी. This is also wrong बेटा. 16. 16. Whose answer is this? Kanak. Kanak. This is also wrong. कोई नहीं, हम डिस्कस करेंगे. क्या बेटा? 3. 3. बेटा जब ये 2 प्लेन थे आपके, फेस को 2 प्लेन है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश. 2 प्लेन ने ही आपके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट. जब 3 होंगे तो आपके पास क्या होगा? 3 डायमेंशनल पूछ रहा हूँ, 3 थोड़ी होंगे बेटा. रॉन्ग. Sir, 8. 8. Whose answer is this? 8. Sir, Bhavya. भव्या. 2 भव्या है मेरे पास बेटा. Sir, Mishra. मिश्रा जी. ओके, भव्या 8 आपने बोला. आंसर इज करेक्ट. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कैसे 8 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको 4 पार्ट दिखाए हैं, अगर आप ऐसे बोलते हो, ये 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, 1 2 3, ये तो 3 ही दिख रहे. योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, बट हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारा वो नहीं है. बट दिस इज द राइट आंसर, राइट. दीज 3 एक्सिस डिवाइडेड दिस स्पेस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं बेसिकली बेटा, हम ये जो पेज है, चलो ये बताओ, ये जो पेज है, ये दिस शीट इज अ 2-डायमेंशनल प्रॉपर्टी, कमोडिटी, और 3-डायमेंशनल प्रॉपर्टी बेटा. बोलो. 3-dimensional. ये शीट बेटा, शीट, ओनली दिस शीट. Sir, the paper is 2-dimensional. This is 2-dimensional बेटा, because I have a y-axis and x-axis only. ठीक है, देखो ये आपकी y-axis और ये x-axis. तीसरी एक्सिस कहाँ है इसमें? नहीं है ना. दिस इज 2-डायमेंशनल. सर है बट बहुत छोटी, तो नेग्लिजिबल है. कहाँ पे बताओ? नहीं दिख रहा बेटा. नेग्लिजिबल क्या हम है? इस पेपर की विड्थ देखेंगे तो होगी ना. नहीं बेटा, नहीं, विड्थ मत देखो बेटा. मैं कह रहा हूँ ना, दिस शीट, आपके पास ये वाला प्लेन है सिर्फ. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बुक के लिए बोल रहा हूँ. अगर मैं इस बुक को बोलता हूँ, सपोज करो नाउ यू हैव दिस बुक, सो नाउ इट इज अ 2-डायमेंशनल और 3-डायमेंशनल. मैं बुक नहीं बोला मैंने. दिस इज, अब आप इसको थिकनेस को भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है ना. तो अगर आप देखोगे तो दिस लाइन इज वाई एक्स, सपोज वाई एक्सिस, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन जो नीचे को जा रही है, थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज नोन एज जेड एक्सिस. ठीक है ना. तो तब आप ये बोल सकते हो दिस इज अ 3-डायमेंशनल फिगर. तो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं बेटा, राइट. ज्योमेट्री बॉक्स इज अ 3-डायमेंशनल फिगर. तो जो भी बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बॉक्सेस होते हैं, दैट इज नॉट 3-डायमेंशनल फिगर. ठीक है, तो वो आएगा भी. हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ गया ज्यादा. ठीक है, बट मैं आपसे एक बार जैसे ही आया तो मैंने आपसे डिस्कस किया ये क्वेश्चन. कहाँ थे भाई हम? थोड़ा ट्रैक से हट गए. ओके, डोमेन आई हैव डिस्कस, डोमेन ऑफ फंक्शन. Domain. So domain is clear beta, the set of all points for which the function is defined. So basically हमें इन पे फोकस करना है बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन पे.
बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वी विल लर्न इन द थर्ड चैप्टर बेटा. तो जब हम करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डोमेन इन रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बस वहां पे भी आपको ये दिमाग में रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन. डेफिनेशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. सो वी हैव टेकन सम रैशनल एक्सप्रेशंस बेटा. फॉर x square the denominator part is 1, so this is defined everywhere. So one concept or one statement is coming here, polynomial. This is known as polynomial beta x square, because इसके denominator में कुछ भी नहीं है, 1 है, right? So this is known as polynomial. Polynomial functions are defined everywhere. जहां पे everywhere आ गया उसका डोमेन हो गया बेटा ऑल रियल नंबर. बस ये ध्यान रखिए, ठीक है. तो जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है whose denominator part is a constant value, one value बेटा, that means that function is defined for all point, all number. The domain is real number, set of real number. ठीक है. चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप उसका मुझे डोमेन बता. Question is fx equal to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4. इसका डोमेन बताना है बेटा. कैलकुलेट करो और मुझे बताओ. मैं बस एक सेकेंड पानी पी लेता हूं. Sir, x belongs to real except 4 and 1. 4 and 1. Check करो बेटा all of you. 4 and 1 is the answer. Yes, sir. Yes, sir. One second. Sir, 4 और 1 के अलावा मतलब सारे r minus 1 and Means 4. all the element other than 1 and 4. all the element other than 1 and 4. Right. Correct answer है बेटा. All the element other than 1 and 4. क्या चेक किया आपने? मुझे ऊपर से कोई मतलब नहीं, ये तो कोई ना कोई आंसर देगा ही देगा. But because of the denominator part 0, this will not define. So what we need to do? First, factorize the denominator part. We need to make factors. ठीक है? And that equate to 0 factors को. So this will give you your those point for which this function is not defined. So its answer is all real number except 1 4. This is your correct answer. ठीक है. एक और देता हूँ. ये आपके जेई 101% है. डोमेन का क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा ही आएगा बेटा. ठीक है. My next question is for finding the domain. Question is x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12. बताओ भाई इसका डोमेन बताओ. This is my function. Domain of f. So R minus 6, B. और except क्या बोला आपने 6,2. Yes. चेक करो भाई यही आंसर है. मुझे नहीं पता फैक्टर क्या था. Yes, sir. चलो ठीक. करेक्ट है बेटा आंसर. चलो 2.3 देखो. ये मैंने आपसे क्वेश्चन कराए हैं. ये वाला एग्जाम, ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का करवा और ये भी आपका मिसलेनियस का. दोनों एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन लिए और आपने दोनों खुद किए. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा. एग्जाम्पल नंबर 37 देखो एक बार बेटा. पेज 37 एग्जाम्पल नंबर 11. Let n be the set of natural number and the relation r be defined on. So my relation, because function is a special relation beta, ध्यान रखना. Let n be the set of natural number and relation r be defined on the set n. तो आपके पास n to n है बेटा. First thing, so that r
this relation is ordered pair x y such that y is equal to 2x, where x and y both belongs to natural number. What is domain, codomain and range of R? Is this relation a function? First thing बेटा, दो चीजें पूछी इसमें उन्होंने आपसे, डोमेन पूछा है, कोडोमेन पूछा है, range they are asking, and is this relation is a function. ठीक है, रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करता हूं बेटा. इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, और भी एलिमेंट है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इमेज, इमेज यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी अदर एलिमेंट्स हैं. यहाँ आपको क्या देखना बेटा, जब रिलेशन होगा तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बच रहे हो जिनका यहाँ पे किसी से रिलेशन ना हो. ठीक है, लेकिन जब फंक्शन होगा तो एवरी एलिमेंट, मैंने एक वर्ड यूज किया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. यहाँ पे हर पॉइंट यानी ये डोमेन पूरा यूज होना चाहिए. आपने रिलेशन में देखा होगा, यहाँ पे डोमेन में कोई ना कोई पॉइंट बच जाता था रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए, हर पॉइंट की इमेज होनी चाहिए यहाँ. देन दिस इज नोन एंड फंक्शन, यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो रिलेशन और फंक्शन में आपका यही डिफरेंस है. तो बेसिकली जो उन्होंने बोला स्पेशल, तो कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं जिसमें सब पॉइंटों का कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं. तो मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x इज योर रूल, जिसको मैंने नॉर्मली आपको इससे इंडिकेट किया था बेटा 2x. इन्होंने इसकी जगह पे y लिख के 2x कर दिया, एक ही बात है. तो अब आप एक चीज चेक करो बेटा, हियर वी हैव नेचुरल नंबर एंड हियर वी हैव नेचुरल नंबर. सो इफ वी पुट, अब रिलेशन के नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म में. तो इफ वी पुट 1, input is 1, what will be output? The first order pair is 1 2, next is 2 4, next is 3 6, next is 4 8 and so on. ये बना लिया बेटा. अब तो देख के पहचानेंगे. देखो फर्स्ट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन का है तो रिलेशन की डेफिनेशन लगाएंगे. डोमेन ऑफ रिलेशन क्या था? डोमेन ऑफ रिलेशन set of all first point of the ordered pair. ठीक है, set of first point of all ordered pair is known as domain of relation. तो मेरे पास जो set of, हाँ जी बेटा. Sir, 2x why should it not come on left hand side? Sir, 2x. This 2x, this is beta Yes, y. Normally function is indicated by, so this y is from set B and this x is from set A. So this Okay. pre-image, image in set B always. This side is known as images, and image is belongs to always set B, and pre-image is a part of set A. Is this clear, beta? Yes, sir. Right. Okay. Now, domain of relation. This R beta. Set of, तो हम लिख रहे हैं 1 2 3 डॉट डॉट. सारे लिख रहे हैं. ये क्या है बेटा? ये पूरा बताओ. नेचुरल numbers. राइट. सो अब आ जाते हैं रेंज. अब रेंज ऑफ आर बोलो बेटा. Even natural numbers. even natural number. So we can write 2n. The general form of even number is 2n. Now what is codomain? Natural number, because here also we have natural number. हमारे पास देखो जो पॉइंटों की इमेजेस आ रही है वो सिर्फ इवन से कनेक्ट हो रहा है. 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 इवन नंबर से कनेक्ट हो रहा है. तो रेंज तो वो होते हैं जो कनेक्टेड नंबर्स होते हैं, इमेजेस जो होती हैं. तो हमने 2n बोल दिया. 2n इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्या बेटा? ये इवन नंबर. ठीक है. अब आ जाओ कोडोमेन. तो कोडोमेन इज नोन एज द होल कंप्लीट सेट B इज नोन एज आपका कोडोमेन. Now the last question is this relation is a function?
मैंने आपसे बोला था अगर किसी एक पॉइंट की दो इमेजेस आ रही हैं देन इट इज नॉट ए फंक्शन। तो कोई ऐसा एक पॉइंट है जिसकी दो इमेज आ रही है, जैसे 1 की 2 भी आ रही हो, थोड़ी देर बाद इन्होंने 1 की 4 भी लिख रखा हो। देखो एक 1 पॉइंट हैज 1 इमेज आ रही है। ये पहला पॉइंट इज इंडिकेटिंग द प्री इमेज एंड द सेकंड पॉइंट इज इंडिकेटिंग द इमेज, राइट बेटा। तो आपका 1 पॉइंट की 2 इमेज है, 2 पॉइंट की 4 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है। तो वी हैव 1 पॉइंट हैज 1 इमेज, so it is a function. Yes, it is a function. आपका 1 marker question, they will give you a relation like this way and they will ask you domain, range, codomain 1 1 1 and the fourth one is real. This function is, this relation is a function or not, this question. So from here you have to identify whether this is a function or not. ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं बेटा। देखो सॉरी मैंने ये एग्जांपल 10 लिया था, मैंने एग्जांपल 11 लिख दिया। कहाँ लिखा ये रहा 10। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब आपको एग्जांपल 11 से क्लियर होगा थोड़ा सा। देखो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जांपल 11। आपके पास जो फर्स्ट है बेटा, दिस इज r इक्वल टू 2 1 देन 3 1 देन 4 2। अगर मैं इसको देखूं, अगर आप इसको डायग्रामेटिक बनाना चाहते हो तो वी हैव 2 3 4, हियर वी हैव 1 2, इमेज ऑफ 2 इज 1, 3 इज 1 एंड इमेज ऑफ 4 इज 2। दिस इज, सो इज दिस अ फंक्शन और नॉट? आप बताओ। Yes, sir. यस इट is a function, right beta? Yes, it is a function as 1 point has unique image, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 2, सेकंड वन। दिस इज रिलेशन, इट इज गिवन 2 2 2 4 देन 3 3 एंड देन 4 4। अगर फिर से डायग्राम बनाता हूं तो आई हैव 2 3 4 So not a here function. 2 3 4। इस 2 की इमेज 2 भी है बेटा एंड 4 भी है, एंड 3 की इमेज 3 है एंड 4 की इमेज 4 है। अब आप देख रहे हो एक पॉइंट की दो इमेज, which is not possible. No. Answer is no. So it is not a function now. Yes. Answer is no. Right. And third one देख के बताओ बेटा, third one, third part, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। It is a function. Sir, it is a function. It is a function now. अगर मैं आपसे कहूँ justify your answer for this, what you will write for this in justification that Has your answer as 2 has two images 2 and 4। बस ये लाइन लिखनी है कि एक पॉइंट 2 है जिसकी दो इमेजेस आ रही हैं 2 and 4, therefore this is not a function। ठीक है बेटा। अब देखो एक बार एक्सरसाइज पे आओ बेटा, एक बार देखो एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू, क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक वी हैव डन सम एग्जांपल्स ऑफ डोमेन एंड रेंज, इस टाइप का बेटा। आपको खुद फंक्शन को आइडेंटिफाई करके देखना है, तो आप कोई बात नहीं, आप ट्राई करना बेटा। अदरवाइज मैं 2.3 नेक्स्ट क्लास में आपसे 2.3 से स्टार्ट करूंगा। टुडे यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास बेटा। एक बार रिवाइज कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है, फंक्शंस को थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर जेई पॉइंट ऑल्सो। रिलेशन को एक बार को आप साइड में कर सकते हो, बट इस फंक्शन का बेस रिलेशन ही है। ठीक है, तो बट स्टिल आप अगर रिलेशन को, क्योंकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आप भूल जाओगे, बट फंक्शन पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक फॉर योर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन, और कोई भी कॉम्पिटिशन दोगे आप, इवन फॉर जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स की जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है बेटा, सो आपको ये ट्राई करने हैं, मतलब जितना आप ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, other question you can try on the basis of the concept we have discussed today। ठीक है, 1 second बेटा, don't leave।